Shweta, uh, of course, even in our own, when we work and when we are busy with life, life got busy, জীয়াব লাগে, কাম কৰিব লাগে, even আমাৰ স্কেডিউলতো খোৱা, ফুড হেবিটছবোৰ একদম বেয়া হৈ যায়। এতিয়া, of course, then আমাৰ প্ৰব্লেমছবোৰ হয়, we have, lot of health issues we go through. Now, bring it down to a community that has been thrown out of the house when they were young. So probably হয়তো বহুদিন খাবই পৰা নাছিলে, ৰাস্তাত ভিক্ষা খুজি খাব লগা হৈছিলে বা কাৰোবাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই খাব লগা হৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে এটা লাইফ, কোনোমতে কিবা কৰি কাম কৰি এটা ছাৰ্ভাইভেল পালে, অপৰচুনিটি, পইচা অকণমান কামালে। সেই কষ্টৰ সেই ইন দ্য জাৰ্নি, food is important, but what kind of food is not important, because थोड़ा कुछ खाने मिल गया तो I'll survive, right? Now that has an impact on health, so now coming, I'll say that coming, let's come out of the maybe an upper class conversation. We have trans women sitting here. I don't know if we have trans men also in the audience. Say regular काम का दिन, they have to go and work. What are the things they should keep in mind? এইটো ভালকৈ শুনিব লাগে, ট্ৰান্স কমিউনিটিৰ আমাৰ যিখিনি গেষ্ট আছে, কি খোৱাটো নিউট্ৰিচনাছ হ'ব, নিউট্ৰিচিয়াছ কি হ'ব, আৰু what they should keep in mind when they go out and when they're consuming things, what they should do and what they should not do. It's very important, because even nutrition is extremely important for both your physical and mental health. And if you want to, help people from trans communities to kind of in the development journey, nutrition becomes an important component. So Shweta, over to you. Yeah, thank you so much for the lovely introduction, and it's indeed a great pleasure to be here. Ladies and gentlemen, my esteemed guests and respected colleagues, today I stand before you as a nutritionist with a purpose to address the root cause that transgender community is facing, both physically and mentally. As ma'am has addressed, especially I want to address it again, that mental and physical well-being all are interconnected. Yeah. Okay. So, yeah, physical and mental well-being are all interconnected. आप अगर स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप अपना फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेल्स एंड थॉट्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. अगर आप फोकस सोच रहे हो कि आप अपने हेल्थ पे करोगे एंड माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वो नहीं पॉसिबल है. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप गुस्सा होके दिखाओ, आप हो पाओगे? नहीं, right? Because you need to feel that emotion in order to feel that particular way, right? या खुश होके दिखाओ, आप नहीं हो पाओगे इंस्टेंट. बिकॉज क्या होता है कि बिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारे बॉडी में होती है, वो वाइब्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर इमोशन. इट कैन बी अ सैड इमोशन और बहुत खुशी का इमोशन हो सकता है. सो आप सोचो, अगर बिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी वाइब्रेट कर रही है विद द sad emotion, what chronic effect it is going to have on health and well-being, right? Because cells and your thoughts all are interconnected. That is why first and foremost it's very important to address the root cause, the mental level. There are certain nutrients, कुछ खाना है जो आपका mental health को elevate करता है. For example, your omega-3 fatty rich food, ऑलिव ऑयल, योर फिश ऑयल, फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, वो क्या करते हैं, आपके मूड को स्टेबिलिटी देते हैं एंड ऑल्सो इट हैंड्स योर मेंटल स्ट्रेंथ. And also there are certain food, for example, vitamin B6, B9, B12, that is very important for the brain functions. And also antioxidant rich food. For example, सारे colorful vegetables and fruits, right? Cherries, strawberries, your guava, your watermelon, your tomatoes, you should include in your diet so that it can enhance your mood. And as far as working population is concerned, it is very important to have a balanced meal. Protein, fats and carbohydrates. Actually होता क्या है ना कि हमारे especially Indian family. Yeah. Can you just tell them food which they can afford? Which they can afford. Yeah. Which even I can afford. Yeah. I was coming to that. Yeah. Yeah. So. Coming to that next.
फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द मसल मास. सो एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 50 किलो के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन डेली खाना है. आप कैसे ले सकते हो प्रोटीन? दाल है, आपका दही है, अंडा है, फिश है, चिकन है, पनीर है. यू कैन इंक्लूड ऑल दैट स्टफ. बहुत ईजी है, ईजिली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल है. अगेन कम्स दी हेल्दी फैट्स. योर घी, योर पनीर, राइट. यू कैन इंक्लूड योर नट्स, सीड्स, सब चीज़ हेल्दी फैट्स में आपको मिलेगा. एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसको रन करता है, राइट. तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स खाना है? दैट इज़ योर होल ग्रेन व्हीट, राइस हो गया, दाल, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है. लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फॉर एग्जांपल योर शुगर, पैकेट फूड, ऑल योर कुकीज़, पेस्ट्रीज, केक, जो भी मीठा है उसको कम करना है. सो दैट इज़ वाई बैलेंस मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल वेल-बींग. So yes, I think these food are easily available and everyone can support. And सबसे ज़्यादा important है to understand कि protein, fats and carbohydrates तीनों का combination is very important. Okay, thank you so much, Shweta. So I was coming to the thing is that while it becomes even for me, sometimes it becomes very technical, right? तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए और रात को क्या खाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सुबह एवरीवन अक्रॉस रोटी, इज रोटी गुड? सब्जी, इफ सब्जी व्हाट काइंड ऑफ सब्जी? बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द रातिपुआ की खाए ओलाय भात खाए ओलाय ने हाँ रुटी रुटी मैगी আৰু হা আৰু চিৰা দৈ নাই ৰুটি আৰু মেগী মেইনলি so is Maggie good? See, any kind of packet food is not good because Yeah. preservatives है उसमें, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है. जैसे आपने बोला ना कि क्या खाना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी. बैलेंस मील इज़ नॉट वेरी टेक्निकल थिंग. अगर आप रोटी खा रहे हो ब्रेकफास्ट में या राइस भी ले रहे हो, सो उसको बैलेंस कैसे बनाओगे आप? एक सोर्स ऑफ प्रोटीन, मे बी दाल, मे बी दही, मे बी स्प्राउट्स, मे बी एग, राइट. उसके साथ एक वेजिटेबल, 1 कटोरी वेजिटेबल, तो वो क्या होगा? बैलेंस मील बनेगा. देन मिड मील यू शुड इंक्लूड 1 फ्रूट, कोई भी सैलेड ले लिया, खीरा, टमाटर, जो भी अवेलेबल है, राइट. फिर लंच में अगर आप राइस ले रहे हो तो उसको कंबाइन किससे करोगे? एक सोर्स ऑफ प्रोटीन, दाल या पनीर, राइट. एक वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स कर्ड से मिल जाएगा. आप कोई भी सब्जी बनाओगे तो घी यूज़ करोगे ही, तो उसमें हेल्दी फैट्स आ जाएगा. तो वो कॉम्बिनेशन बन गया. दैट इज़ आई गेस सब अफोर्ड कर सकते हैं एंड इट्स वेरी ईजी. फिर मिड मील यू कैन हैव अ रोस्टेड पीनट्स और मे बी मखाना और मे बी एग वाइट. फिर डिनर में यू कैन हैव अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल चिकन, फिश या पनीर, कोई भी दाल, राजमा, चना. फिर राइस अगर लेना है तो राइस ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, रोटी, फिर एक वेजिटेबल्स. तो इससे क्या होता है? कॉम्बिनेशन बनता है सब मील का. एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? जंक फूड जितना आप खाओगे बॉडी उतना मांगती है, बिकॉज इट इज़ अ क्विकेस्ट, सिंपल कार्ब्स का सोर्स है ना, तो इट इज़ अ क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन. तो ब्रेन इज़ वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि सबसे जल्दी एनर्जी क्या देगा? पैकेट फूड, जंक फूड. वो उसको क्रेव कराता है. तो जितना आप खाओगे वो उतना बॉडी मांगता है. तो इसलिए बॉडी को थोड़ा फूल करना ज़रूरी होता है. तो इसलिए जितना पैकेट फूड आप कम खाओगे बॉडी उतना कम मांगेगी. हम लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं पता है? हम लोग स्टार्ट मील करते हैं ना अपना, तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स ओरिएंटेड रहता है. रोटी जैसे बोले, रोटी एंड सब्जी, लेकिन साथ में सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, राइट. आप राजमा, चना, छोला, दाल, अंडा कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट. तो क्या होगा? जितना प्रोटीन खाते हैं उतना पेट भरता है आपका, तो नेक्स्ट मील आप कम खाते हो, राइट. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. সো বুজি পালে নহয় চ' মানে মেগীটো খাব নালাগে মুঠতে ৰাতিপুৱা উঠি